Welcome to Reddy's classes. My name is Jagdish Shukla. This is our fifth lecture on compound interest. In last lecture we have already covered question number 1 to 7 of exercise 2b and remaining questions we will cover today. So let's start with question number 8. So what is given in the question number 8? Principal is 1,25,000 and period is 1.5 years. Rate is 12% per annum, but interest is compounded half yearly. We have to find amount and compound interest. So either you can use formula or you can use simply what we have learnt in the second lecture. So we'll use formula. Principal is rupees 1,25,000 and period is 1.5 years. इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो हमें इसको हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कितने 1 ईयर में आपके 2 हाफ और ये 1 हाफ, मतलब कितने हो गए आपके. इसको इधर यू कैन मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो. 2 1 + 2 + 1 3/2 इंटू 2 हाफ ईयर्स ना. 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं. 2 गेट्स कैंसल्ड तो n हो गया आपका 3 हाफ ईयर्स. इन शॉर्ट एन मीन्स क्या हो गया आपका कि आपको कितने टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा 1.5 ईयर्स में. तो आपको 3 टाइम्स मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली. एंड रेट इज 12% पर एनम होल ईयर एंड इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 months. 12% per annum for whole year, therefore R equals to 12/2% for half year. तो 12/2 6% for half year. सिंपली यहाँ पे आपको 2 का मल्टीप्लाई करना. जब भी हाफ ईयरली इंटरेस्ट रहेगा तो 2 का मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 2 का डिवीज़न देना है. तो अभी ये डेटा हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला में. तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज़ टू n. प्रिंसिपल इज 1,25,000. 1 प्लस रेट इज 6/100 फॉर 3 periods, 3 half years. Hundred ones are 100 plus 1, 1,25,000 into 106/100. 3 टाइम्स आ जाएगा. 106/100 इंटू 106/100. कैंसिल कर दो जो हो रहा है. 0 0 कैंसल्ड. 0 0 ओनली 1 0. 0 कैंसल्ड. 5 2s are 10. 5 2s are 10. 2 carry. 5 5s are 25. 2 1s are 2 5s are and 2 3s are 25. 1s are 25. 4s are 2 2s are 2 53s are 2 1s are 2 53s are. तो 53 इंटू 53 इंटू 53 अमाउंट इक्वल्स टू 53 इंटू 53 इंटू 53. तो लेट्स फाइंड अमाउंट. 53 इंटू 53. 3 3s are 9. 3 5s are 15. 5 3s are 15. Carry 1. 5 5s are 25 plus 1 26. 9 0 carry 1. 6 plus 1 7 plus 1 8 2 into 53. 9 3s are 27. 8 3s are 24. 2 carry. 3 2s are 6 7 8. 5 9s are 45. 5 8s are 40. Carry 4. 5 2s are 10 plus 4 14.
778,841. Your amount will be 148877, 1,48,877. We have to find compound interest as well. Compound interest equals to amount minus principal. Amount is 1,48,877 minus 1,25,000. 87732. So your interest will be 23,877. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. Simple interest given 900. Rate of interest is 12% for full year and period is 1 year. We have to find principal and simple interest, compound interest for 1 year if interest is compounded half yearly. तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करो. पहले सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो उसका इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हम प्रिंसिपल ढूंढेंगे. पार्ट 1. सिंपल इंटरेस्ट इज़ 900 रुपीज़ and rate is 12% and period is 1 year. Simple interest equals to PNR into 100 upon 100. 900 equals to principal, we don't know, into and 1 year into rate is 12 by 100. तो 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन से डिवीज़न 12 इक्वल्स टू P. 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा एंड 4 25 ज़ा, 25 3 ज़ा 75. तो योर P इज़ 7,500. Second part, compound interest for 1 year. All other details will be same. Principal will be yours 7,500, rate will be 12% and period will be 1 year, but compounding is done half yearly. So we can use the formula amount equals to P into 1 plus R by 100 raised to N. So principal is 7,500. 1 plus rate is 12% for full year, but we are compounding half yearly, so your rate will be 12% is for full year. So for half years 12 by 2 for half year. So R equals to 6% for half year. Same way, N is 1 year, so in 1 year there will be 2 half years, so 1 into 2, N equals to 2 half years. सिंपली जब हाफ ईयर रहेगा तो आपको यहाँ पे रेट में डिवाइड करना है और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है. तो 1 plus 6 by 100 raised to 2. तो 7,500 इंटू 100 1 ज़ा 100 प्लस 6, 106 बाय 100 2 टाइम्स है, तो इंटू 106 बाय 100. 0 0 कैंसल्ड. 25 4 ज़ा 100 एंड 25 3 ज़ा 75. 2 1 ज़ा और 2 ज़ा 4 एंड 2 53 ज़ा 106. 2 1 ज़ा एंड 2 53 ज़ा. 3 इंटू 53 इंटू 53. 3 3 ज़ा 9. 3 5 ज़ा 15. 159 इंटू 53. 159 into 53. 9 3 ज़ा 27, 2 carry
5 3 जा 15 and 2 17, 1 carry, 3 1 जा 3 plus 1 4, 5 9 जा 45, 4 carry, 5 5 जा 25 plus 4 29, 2 carry, 5 1 जा 5 plus 2 7, 7 plus 5 12, 1 carry, 9 plus 1 10 plus 4 14, 1 carry, 7 plus 1 8. So your amount will be after 1 year 8,427. We have to find compound interest. Compound interest equals to amount minus principal. 8427 minus 7,500. So your answer will be 927 rupees. Let's read what is given in question number 10. What sum of money will amount to rupees 18,150? What sum of money means principal की बात कर रहा है वो. Will amount to 18,150. तो वो amount कितना हो जाएगा 18,150 in 2 years. Period is 2 years. At 10% per annum. Rate is 10%, which is compounded annually. So we have to find principal. So our formula is amount equals to principal into 1 plus r by 100 raised to n. So principal we have to find, amount is given, n is given and r is given. सब कुछ दिया हुआ है, खाली principal आपका मिसिंग है. तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करके ढूंढ सकते हैं. वैसे ही कभी कभी आपका रेट मिसिंग होगा, कभी पीरियड मिसिंग होगा, तो हम फार्मूला यूज़ करके ढूंढ सकते हैं. कोई भी एक चीज़ मिस होगी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अमाउंट इज 18,150 इक्वल्स टू प्रिंसिपल वी डोंट नो, या वी कैन अज्यूम लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज़ p. लेट द सम ऑफ मनी बी रुपीज़ p. One plus rate is 10 and interest is also compounded annually. 18,150 equals to p. 0 0 get cancelled. 10 ones are 10 plus 1 11 by 10 into 11 by 10. 2 times. अभी ये यहाँ पे आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. 18,150 इंटू 10 बाई 11 इंटू 10 बाई 11 इक्वल्स टू p. 11 से डिवाइड कर दो इसको. 11 वन ज़ा 11, 18 माइनस 11 7 71, 11 6 ज़ा 66, 71 minus 66 5 55, 11 5 जा 55, 55 minus 55 0, then 11 0 जा 0. Again divide by 11. 11 1 जा 11, 16 minus 11 carry 5, 55 हो गया. 11 5 जा 55 0, 55 minus 55 0, 11 0 जा 0. तो 150 into 10 into 10. So simply put 0 after 150. So your principal will be 150 and 2 zeros 0 0, 15,000. We have to find principal. Therefore the sum of money will be sum of money invested is rupees 15,000. आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. 15,000 प्लस 10% करेंगे तो आपको 18,150 मिल जाएगा. डू क्वेश्चन नंबर 11 एज योर होमवर्क. नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 12. ऑन व्हाट सम ऑफ मनी will the compound interest for 2 years
at 8% per annum is 7,488. तो आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, मीन्स P प्रिंसिपल कितना लगाएंगे कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 ईयर्स में 7,488 हो जाएगा. तो पीरियड 2 ईयर्स है एट द रेट 8% पर एनम एंड कंपाउंडिंग इज डन, नथिंग इज मैंशन, तो वी विल अज्यूम कंपाउंडिंग इज डन एन्युअली. तो अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू N. वी डोंट नो द अमाउंट and principal as well. So 1 plus R is your 8% and period is 2 years. Then your amount will be P into 100 ones are 100 plus 8, 108 by 100, 2 times 108 by 100. अब इसको यहीं पे छोड़ दो. हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है. कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू A माइनस P. अमाउंट इज दिस वन, 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू P माइनस P. P प्रिंसिपल और P यहाँ का P आ गया. अभी P दोनों में है तो कॉमन ले लो, तो P कॉमन आ गया. 108 बाय 100 इंटू 108 बाय 100 माइनस 1. पहले हमें प्रोडक्ट करना है, उसको कैंसलेशन कर देते हैं. 4 2s and 4 5s. 4 2s 8, carry 2, and 4 7s 28. Same way 4 25s and 4 27s. अदरवाइज और कैंसिलेशन तो नहीं होगा फर्दर, तो हम लोग क्या करते हैं 108 का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो सिंपल हो जाएगा. 108 इंटू 108, 8 8 64, 8 1 8, 0 0 0, 8 0 1, 4 6 8 8 16, 1 carry 1. यहाँ पे आपका P कॉमन आ गया. 108 इंटू 108 बाय 100 इंटू 100 माइनस 1. तो 108 इंटू 108 हमने किया 11,664. 11,664 अपॉन 10,000 माइनस 1 इक्वल्स टू CI इज गिवन 7488, 7488, 7488, 7,488. तो 7,488 इक्वल्स टू P इंटू 11,664 डिवाइडेड बाई 10,000. तो 4 जीरोज़ है तो पीछे से 4 0, 1 2 3 4, 1.16. या फिर सिंपली उसको ऐसे रहने दो, 10,000 इंटू 1 कर दो. अब 11,664 माइनस 10,000 इंटू 1, 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000. $7,488 equals to P 11,664 minus 10,000. So 1,664 by 10,000
अभी यहाँ पे से यहाँ भेज दो, उसको रेसिप्रोकल हो जाएगा 7488 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 1664 इक्वल्स टू P। अब इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग, 4 से हो जाएगा 4 4 जा 16, 0 कैरी, 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 2 कैरी, 4 6 जा 24, इसको भी 4 से डिवाइड दे देते हैं, 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 3, 4 8 जा 32, 34 माइनस 32 2, 4 7 जा 28, 28 माइनस 28 0, 8 बचा, 4 2 जा 8। अगेन हम इसको 4 से कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 0, 1 में से 4 का डिवीज़न नहीं जाएगा तो 4 0 जा 0, अगेन 1 माइनस 0 1, 4 4 जा 16, 1 नॉट 4, इसको भी डिवाइड कर दो, 4 4 जा 16, 18 माइनस 16 2, एंड रिमेनिंग 27 बचा हमारा, 4 4 जा 16, 18 माइनस 16 2, 4 7 जा 4 6 जा 24, 27 माइनस 24 3, 4 8 जा 32, अगेन जाएगा 4 से, 4 2 जा 8 2 कैरी, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 0 कैरी, 4 1 जा 4 2 कैरी, 6 माइनस 4 2, 4 7 जा 28, अभी आप इसको 13 से भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर इससे कैंसिल कर सकते हैं इसको, टू 13 2 जा 13 9 जा एंड 10,000 इंटू 9 सब कैंसिल हो गया। अभी 2 बचा है यहाँ पे, 2 1 जा 2 5 जा 10 एंड 5 zeros, तो 5,000 इंटू 9, 5 9 जा 45, तो प्रिंसिपल विल बी 45,000 रुपीज़। सम ऑफ मनी ₹45,000। जब हम 45,000 इन्वेस्ट करेंगे तब हमें 2 years के बाद 8% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली होगा, तो हमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा 7,488। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चंस विल सी इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।